Hi, good morning, Vedant. Hope you are fine and doing well. Uh, as you are applying for the data analyst post, right? So, can you tell me why do you want to be a data analyst? Sir, a data analyst job is to take data and use it to help companies to make better business decisions, sir. Sir, I'm good with numbers, collecting data and market research as well. And which area you would work in and why? Sir, I would prefer to work as a marketing analyst sir, because it's in line with my interest and skills, sir. Okay, I want to know which data analysis software are you trained in? Sir, I do a lot of data management, data mining and algorithm work, sir. Sir, I can also create and manage the database in Microsoft Access, SQL, and sir, I'm good in Excel as well. And what are your long-term goals? Sir, my long-term goals involve growing with a company where I can continue to learn, sir, take on additional responsibilities. And sir, I want to contribute as much value as I can. Can you justify why should we hire you? Sir, I have the knowledge, experience, and excellent communication ability to be an asset to your company, sir. Okay, Vedant, let's come to the technical part and tell me what is the default value of last parameter of VLOOKUP. Sir, default value is true, or you can say, sir, 1. Sir, as it refers to finding the closest, or you can say approximate match, and also assuming the table is stored in a ascending order, sir. Whereas false, that means 0, sir, it refers to as exact match. Okay, does this VLOOKUP look up case sensitive values as well? No, sir, it is not case sensitive. And how to create cross tabulation in Excel? Sir, you just need to use a pivot table and select one variable in row level and another variable in column level, sir. Okay, Vedant, can you tell me how to find out the duplicates value in a column? Sir, first and basic method, use conditional formatting to highlight the duplicate values. And the second method, sir, using function countif, you are able to extract the duplicate values. Okay, Vedant, suppose you need to create a dashboard for my client. In that case, what are the most common questions you are supposed to ask to a client before creating a dashboard? Sir, purpose of the dashboards, the frequency at which the dashboard needs to be updated, and sir, the version of Office the client uses. Okay, Vedant, what steps can you take to handle a slow Excel workbook? Sir, try using manual calculation mode. Sir, maintain all the reference data in a single cell. Sir, try to use helper column instead of array formulas. Sir, also try to avoid using entire row or entire columns in a references. And also convert all the unused formula to value. That's the good idea, sir. Okay, can you explain the difference between median and mode? All in one line, that's it. Sir, median is the middle value and mode is the most occurring value. Name the different data validation methods that is used by data analysts. Sir, field level validation, form level validation, data saving validation, or search criteria validation. Okay, Vedant, if you are applying for the data analyst post, in that case, you must heard about data mining concept, right? So I just want to know from you that what is the difference between data mining and data analysis. So data mining is used to recognize the patterns in data stored, whereas data analysis used to order and organize the raw data in a meaningful manner, sir. Okay, can you explain what are the tools that is used in big data? Sir, Hadoop, Scoop, Hive और कई सारे हैं, sir. And what are the best tools used for data analysis and data visualization? Sir, most useful Excel, Tableau, Power BI, Solver and Node Excel, sir. सर, इस क्वेश्चन में आपने पूछा है पैड वीक नंबर्स विद जीरोज, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर रहा हूं और साथ के साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं जैसा आपने इंस्ट्रक्ट किया है, सर. तो सर, इसका जो वीक नंबर है इसको मैं इस तरीके से पैडिंग करना चाहता हूं, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूं, सर. सर, इस क्वेश्चन में पहले मैं ले लूंगा टेक्स्ट, उसके अंदर वीक नंबर और ये सीरियल नंबर, ये कॉमा रिटर्न टाइप मैं 21 ले लेता हूँ, मंडे से स्टार्ट होना चाहिए, ये कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट में सर पास कर दूंगा इस तरीके से, ये आ गया सर. ये सर इसमें आपने पूछा है ऐड होल रो, दैट मीन्स ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है. अगर यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है बट बीच में एरर भी है. अच्छा सर, मेथड 1 में मैं पास कर दूंगा इक्वल टू सम इफ, और सिर्फ सर इसमें से अगर हम नंबर ले लें तो ये इसको जहां पे एरर आ रहा है उसको छोड़ देगा. तो मैंने सर पास कर दिया इक्वल टू सम इफ, और यहीं पे पास कर देंगे सर इज नंबर. क्या ये नंबर है? तो इस रेंज में जो भी नंबर होगा, यहां से यहां तक का मैंने रेंज ले लिया, ये अगर नंबर हो तो कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर सही हो तो यहां से यहां तक का रेंज. फॉल्स में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बंद. और सर अब ये एरे का केस हो गया तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, सर ये रहा 32, सर देख लीजिए.
सम तो करना ही था, बट सम किसको करना है? यदि ये रेंज में नंबर हो तो इफ इज नंबर रेंज और उसी रेंज को सम करना है सर। सेकेंड मेथड में सर हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें सम इफ से भी कर सकते हैं सर। सम इफ ये रेंज कॉमा क्राइटेरिया में अगर हम सिर्फ नंबर को ले लें तो ये नंबर को, जो नंबर का मैक्सिमम अगर हम रेंज पास कर दें तो ये टोटल नंबर की बात करेगा, उसमें से चाहे एरर होगा स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी आएगा तो उसके बीच में उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया में सर पास कर रहा हूं लेस देन, और जो डिजिट की मैक्सिमम लेंथ होती है वो मैं ले रहा हूं सर। तो लेस देन यहाँ पे एंड 9.9 और 307, ये होता है ना मैक्सिमम लेंथ, यहाँ पे 307 सर ये डिजिट की मैक्सिमम लेंथ होती है। तो ये पास कर दिया, कॉमा सम का रेंज, तो सम का रेंज में फिर से वही पास कर दूंगा, इसको पास कर दिया सर, ब्रैकेट बंद और एंटर। 32 सर वही आया, देख लीजिए सम इफ रेंज, और ये मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले ली है डिजिट का, लेस देन तो सिर्फ डिजिट की वैल्यू को पिक करेगा, उसको अलावा जो उसको दूसरा मिलेगा उसको कंसीडर ही नहीं। इस तरीके से सर आएगा। सर इस क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो भी यहाँ पे मैं पोजीशन पास करूं उस पोजीशन पे जो भी पॉजिटिव नंबर है इस रेंज में उसे बताए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 3 पास किया तो थर्ड नंबर पे कौन सा वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू उसे बताएगा। अगर मैंने यहाँ 1 पास कर दिया तो पहले नंबर पे कौन सा पॉजिटिव वैल्यू है उसे बताएगा। सर यहाँ पे मैं पास करूंगा इक्वल टू, दो कंडीशन मैच कराना है मुझे, ट्रू एंड और काउंट इफ, रेंज में ले लिया सर यहीं से यहीं तक, इसको कर दूंगा फ्रीज जिससे कि एक एक करके अकरेंस नीचे की तरफ जाए। रेंज कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर को रखना है ना, तो ग्रेटर देन 0, ये हो गया कंडीशन, ब्रैकेट बंद और वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, इस वाले सेल के सर, फ्रीज कर दिया। कॉमा सेकेंड क्राइटेरिया जो मेरा है वो ये वाला सेल भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ब्रैकेट बंद एंटर। एक बार चेक कर लेते हैं सर, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 1, ये आ गया सर, देखिए 1 ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 तो थर्ड नंबर पे पॉजिटिव ट्रू, ये रहा सर 12, दैट मीन्स 17 ये एक पॉजिटिव है, 18 दूसरा पॉजिटिव है और तीसरा पॉजिटिव है 12। सर ये बार बार वैल्यू इसलिए चेंज हो रहा है, रैंड बिटवीन पास कर रखा है सर। साथ के साथ इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी इस डेटा पर लगा देता हूँ, यही फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं और इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगा देता हूँ। सेलेक्ट कर लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यहाँ पे गया पेस्ट कर दिया इसको और यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया सर। अब इससे और क्लियर हो जाएगा सर। अगर मान के चलते मैं यहाँ पे पोजीशन पास कर देता हूँ 2, दैट मीन्स सेकंड नंबर पे जो पॉजिटिव है सर, देखिए थर्ड पहला और ये 1 दूसरा। अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 4, इस तरीके से सर फोर्थ नंबर पे जो पॉजिटिव वैल्यू है सर उसको ले लेंगे। इस क्वेश्चन में आपने पूछा है काउंट द प्रोडक्ट मैच्ड इन अ डेटा सेट, मतलब ये डेटा सेट है, इसमें जो भी प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जैसे सोनी कैपिटल लेटर में लिखा है तो यहाँ पे जितने कैपिटल लेटर वाले सोनी हैं, जैसे सोनी 1, 2 सोनी, मतलब यहाँ पे आ जाना चाहिए 2। उसी तरीके से मतलब केस सेंसिटिव का केस है सर। सर ऐसे सिचुएशन में एग्जैक्ट से हम केस सेंसिटिव मैच को कंपेयर कर लेंगे, जैसे कि इक्वल टू पास कर दिया सम और सम के अंदर पास कर दिया एग्जैक्ट और टेक्स्ट 1 में ये रेंज कॉमा उसको कंपेयर कर लेता हूं सर मैं इससे। सर अगर मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करता हूं तो अभी आउटपुट नहीं आएगा सर, 0 आया, क्योंकि ये जो इसके अंदर का डेटा भी होगा ये लॉजिकल होगा, दैट मीन्स ट्रू फॉल्स होगा सर। इस तरीके के ये लॉजिकल वैल्यू फॉल्स ट्रू को काउंट नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स मुझे जो ट्रू है और ये फॉल्स है इसको 1 और 0 में कन्वर्ट करना होगा। मैं क्या करूंगा सर, इसी वैल्यू को यहां पे इनटू पास कर दूंगा 1। अब ये 1 करते ही, अब अगर मैं इसको चेक करता हूं तो इसको चेक करने में इवेल्युएट कर लेते हैं इसको सर। ये देखिए सर अब आ गया 1 1, जहां जहां ट्रू होगा उसको 1 कर देगा, जहां जहां फॉल्स होगा उसको 0 कर देगा। अब चूंकि सर बाहर सम लगाए रखा है तो जब ट्रू 1 बन गया और फॉल्स 0 बन गया तो उसको काउंट कर देगा। लेकिन सर ये फिर अभी भी ये एंटर प्रेस करके नहीं चलेगा, अब ये एरे का केस हो गया तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से चलेगा सर। इस तरीके से अब सोनी 2, जैसे मैंने नोकिया लिख दिया तो ये वाला नोकिया काउंट कर रहा है, और जो भी केस सेंसिटिव डेटा लिख रहा हूं सर मैं उसी का काउंट आ रहा है।
इस तरीके से किया सर इसमें आपने पूछा है यूजिंग पिवट टेबल्स प्लीज कैलकुलेट सेल्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ईच सेल्स रेंज। ऐसा टेबल चाहिए, मतलब आउटपुट इस टाइप का चाहिए, जैसे निकाल रखा है सेल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और रेंज, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, कर्सर यहाँ रखा, ऑल्ट एन वी, और यहीं कहीं ले लेता हूँ सर, इसके साथ ही बनाता हूँ, इससे कंपेयर भी हो जाएगा। इस पर क्लिक किया और इसको मैं ले लेता हूँ क्लासिकल में, यहाँ से क्लासिकल ले लेता हूँ, क्लासिक लेआउट ले लेता हूँ, ये ले लिया सर। अब मैंने क्या किया, सेल्स को उठा के एक बार रो में रख देता हूँ। हाँ, इस तरीके से आ गया ना। अब राइट क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ सर ग्रुप, और ग्रुप यहाँ 9 नहीं 0 हो जाएगा, और 100 का ग्रुप है ऊपर में। ठीक है, ऐसे ही तो ग्रुप है, हाँ 100 का ग्रुप है सर। ओके कर दिया, इस टाइप से बन गया सर, देख लीजिए 0 से 99 ये रहा। उसके बाद ये जो सेल्स अमाउंट है, इस चीज को उठा के मैंने रख दिया वैल्यू में, तो मेरे पास ये आ गया। और सेल्स भी चाहिए, तो मैं सेल्स को एक बार फिर से रख देता हूँ इसमें यहीं, और इस वाले को सेल्स को मैं यहाँ पे काउंट नहीं करके यहाँ से मैं ले लेता हूँ सम, इसको सम कर दिया, ये रहा सर, ये रहा सेम आउटपुट आ गया, देख लीजिए सर, ये रहा सेल्स आपका, और ये इस तरीके से। थैंक्स सर, डन ऑल द क्वेश्चंस।